Okay, so welcome back. Let's solve a problem, and during the solution of that problem, you will be able to find out the design procedure uh, of single stub. That is how to find out D and L. So let's consider this example. So we have an example. Match a load impedance ZL is equal to 60 minus J80 ohm using short circuited single stub connected in shunt. The transmission line characteristic impedance is 50 ohm. So this is the example that we will solve using Smith chart technique. Okay, so what are the important data given in this example? So we are given the load impedance value, we are given the Z naught value, and we are asked to use single stub which should be connected in shunt, and we are also asked to use short circuited stub. So we have to find a solution under this constraint. Okay, so how our circuit will look like based on this information. So this is the load impedance ZL, 60 minus J80 ohm. Z naught is given to us, it's 50 ohm. And what we need to do is we need to connect a stub in shunt configuration. So let's assume this is the position where we will connect our stub. So this is D, which is right now unknown. Also, this transmission line, sorry, the stub length is also unknown. It's short circuited, so it means this end of transmission line is short circuited. So this is a short circuited stub. So now our goal is to find out these two unknowns, D and L. Now, because we are making use of Smith chart technique, so first thing we need to do is, before solving any problem with the help of Smith chart, is to normalize the impedances.
So ZL is given to us, so we will divide ZL by Z naught. This will give us the normalized value ZL dash. So 60 minus J80 ohm divided by 50 ohm, that will be equal to 1.2 minus 1.6. So this is the normalized load value. So what you need to do is locate or find where is this load impedance located. So what you need to do is locate this ZL dash on Smith chart. So you people must have a Smith chart in front of you. So make sure that you people locate this value. So let me also open the Smith chart. So this is the Smith chart. And I'm going to find out where is this normalized load impedance located on the Smith chart. So you people should also do this and let me know when you people are done with this, okay? सबने locate कर लिया जी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So let me do that. So we have 1.2 and 1.6. ये point होगा जी? Can you people see this point that I am? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. आपके पास भी यही point है ना? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. So let me write the name of this point, ZL dash. So ZL dash, which in this case is 1.2 minus J 1.6, we can find its position on the Smith chart. Okay. This is the first step that you will do. Now, what is the important point that we need to keep in our mind while solving this problem? And that the point is we are going to connect our stuff in shunt configuration. And as for our previous matching network, जिसको हमने L network कहा था, उसमें भी ये बात मैंने बार बार repeat की थी, that whenever we connect something in shunt, we should use admittance quantities. ठीक है? तो हम अपने प्रॉब्लम में जो इम्पिडेंस अगर गिवन है उसको एडमिटेंस में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है? सो शंट केस में हम वाई मोड में ऑपरेट करेंगे, विच मीन्स के हमारे पास रियल पार्ट
जी से हम रिप्रेजेंट करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को हम रिप्रेजेंट करेंगे विद बी। सो इट मीन्स कि ये जो ZL डैश है इसको हमने किस में कन्वर्ट करना होगा, YL डैश में। ओके, एंड आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस प्रोसेस कि स्मिथ चार्ट में अगर हमने किसी भी गिवन इम्पिडेंस को एडमिटेंस में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं जी, क्या करना पड़ेगा? 180 डिग्री शिफ्ट, 180 डिग्री शिफ्ट। यस 180 डिग्री। ये जो पॉइंट है इसको हम एग्जैक्टली 180 डिग्री पे ले जाएंगे और दूसरी तरफ हम चले जाएंगे। ठीक है, सो इट मीन्स के व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज, जो आपके पास स्मिथ चार्ट होगा उसमें आप क्या करेंगे कि लेट मी ड्रॉ दिस लाइन, कि आप इस पॉइंट को सेंटर के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक हो गया, और आपके पास रूलर होगा, उसकी मदद से आपको आइडिया हो जाएगा कि इस लाइन जो इस वक्त मैंने सेंटर ऑफ स्मिथ चार्ट को और ZL डैश को जो कनेक्ट किया है इसकी जितनी भी लेंथ है रूलर के हिसाब से आपके पास जितनी भी आए 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, इट मीन्स कि अब इस सेंटर से आपने दूसरे साइड पे इसको इतने ही डिस्टेंस पे इतनी ही लेंथ की एक और लाइन को एक बनाना है, 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर है। तो मैं इसको रफली कर रहा हूँ, I'm not using any ruler, I'm just visually मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको उस तक ले जाऊँ। So I think this is what you will get. और इसको मैं थोड़ा सा ओके, सो लेट्स अज्यूम आपके पास जो भी एग्जैक्ट वैल्यू आती है मेक श्योर कि आप उसी हिसाब से इस पॉइंट को आप मार्क कर लें। ठीक है, so you will get some point over here and accordingly इसको हम फिर YL डैश कह देंगे। Can anyone tell me the exact values? क्या आप मुझे आप बता सकते हैं जी YL डैश किसके बराबर है जी? आप लोगों ने जो एग्जैक्ट 0.3 प्लस 0 J 0.4 प्लस J 0.4, ये जी बाकी स्टूडेंट जरा कंफर्म कर दें ये जो रीडिंग बताई है। ठीक है सर। यस सर। सर मेरे पास 0.32 आ रहे हैं। 0.32 आ रहा है। ओके, इतना फर्क तो नहीं होना चाहिए जी। बाकी जी स्टूडेंट जो इस वक्त है मेरे पास 28 स्टूडेंट्स, तो बाकी स्टूडेंट्स क्या कहते हैं जी, जो मेजॉरिटी मुझे बताएंगे तो मैं उसी के हिसाब से चलूंगा। 0.3 सर। 0.3 सर। 0.3 सर। 0.3 कौन सा रियल पार्ट की बात कर रहे हैं, इमेजिनरी पार्ट की बात कर रहे हैं आप लोग? रियल की बात। पार्ट। रियल सर। 0.3 है सर। ओके, ये तो ठीक हो गया। व्हाट अबाउट इमेजिनरी पार्ट? 0.4। 0.4 सर। सही है। सही है। 0.4 ओके यस सर। ओके ओके, सो मेक श्योर जो जिनके पास अगर इससे डिफरेंट रिजल्ट आ रहा है इसका मतलब है कि दे आर नॉट, इसको आप सही नहीं कर रही, जो जिस प्रोसीजर के जरिए से हम ZL डैश को YL डैश में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे कोई मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक हो गया सर 0.4 तो आ रहा है, सिर्फ ये रियल पार्ट में मसला है। रियल पार्ट में मसला है, और रियल पार्ट में मसला तो नहीं होना चाहिए। अगर हम इसको यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ तो अगर आप देखें 0.3 यहाँ पे है और 0.4, तो इतना फर्क नहीं आना चाहिए जी। आप इसको दोबारा से चेक कर लीजिए, ओके सर। क्योंकि मेरे हिसाब से भी इसको रियल पार्ट जो है वो 0.3 ही आना चाहिए। ठीक है, आपने यहाँ पे कोई ना कोई, या तो आपने ZL डैश को सही मार्क नहीं किया हुआ, ठीक है,
या तो आपने इस ZL डैश को सही मार्क नहीं किया हुआ, या फिर आपने इस लेंथ को, जो मैंने कहा था कि ZL डैश से सेंटर पर जितनी भी लेंथ है इतनी लेंथ इसको दूसरी साइड पे एक्सटेंड कर दें, इसमें आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं. So this is the value of YL dash, okay? And you make sure कि आपके पास जो रिजल्ट है वो इसके साथ मैच करना चाहिए. Now this is what we will do because of the reason कि हमने जो स्टब लगाना है वो शंट में लगाना था, इस वजह से ये काम मैंने किया. अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ आ जाते हैं जी. हमने जो सर्किट डिजाइन करना है उसको भी मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, उसका एक छोटा सा वर्जन कि हम एक्चुअली ये सर्किट डिजाइन कर रहे हैं. कि हमने स्टब लगाना है, लेकिन स्टब लगाने से पहले उसकी पोजीशन पहले फाइंड करनी है, जिसको हमने डी से रिप्रेजेंट किया हुआ था. ठीक हो. और पिछले सेशन में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था कि डी के लिए हमें क्या करना है. हमने ट्रांसमिशन लाइन पे एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां पे इम्पिडेंस का जो रियल पार्ट है वो Z0 के बराबर हो जाए. ठीक है. इफ यू गो बैक टू माय प्रीवियस डिस्कशन, जिसमें मैंने कहा था कि ये इस पॉइंट पे हमें किस किस्म का बिहेवियर चाहिए. हमें बिहेवियर चाहिए कि अगर हम इम्पिडेंस की बात करें, इस वक्त मैं इम्पिडेंस मोड में कह रहा हूँ, लेकिन इसको मैं एडमिटेंस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. आई वांट कि यहाँ पे रियल पार्ट Z0 हो और इमेजिनरी पार्ट, जिस तरह मैंने कहा था, इट डजंट मैटर कि चाहे प्लस हो या माइनस JX हो, इट डजंट मैटर. ये हमने कहा था. अब क्योंकि हम शंट मोड की बात कर रहे हैं, तो दिस डिस्कशन कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू एडमिटेंस मोड. जिस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं कि इसका इम्पिडेंस बिहेवियर इतना होना चाहिए, इस पॉइंट के एडमिटेंस के बारे में मैं ये कहूंगा कि इस हमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां पे एडमिटेंस का रियल पार्ट Y0 के बराबर हो और इमेजिनरी पार्ट डजंट मैटर, प्लस हो या माइनस हो, इट डजंट मैटर. What we want is कि रियल पार्ट का बिहेवियर ये होना चाहिए कि इट शुड बी इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस, अगर हम इम्पिडेंस की बात करें. और अगर हम एडमिटेंस की बात करें कि इस पॉइंट पे एडमिटेंस कितनी होनी चाहिए, तो एडमिटेंस का जो रियल पार्ट है वो कैरेक्टरिस्टिक एडमिटेंस के बराबर होना चाहिए. यू ऑलरेडी नो कि ये जो हम Y0 का सिंबल यूज करते हैं, इट इज 1/Z0. तो अगर Z0 को हम कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस कह रहे हैं, तो Y0 को फिर हम कहते हैं कि ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक एडमिटेंस है. ओके. इसको अगर आप नॉर्मलाइज कर दें, ये तो हम एक्चुअल वैल्यू की बात कर रहे थे ना, कि इस पॉइंट पे इम्पिडेंस का रियल पार्ट Z0 हो और इमेजिनरी पार्ट. लेकिन अब क्योंकि हम स्मिथ चार्ट पे सब कुछ कर रहे हैं, तो इस बिहेवियर को अगर मैं नॉर्मलाइज कर दूं या इसको नॉर्मलाइज कर दूं, तो आप क्या करेंगे, Z0 पे डिवाइड करेंगे, इस केस में Y0 पे डिवाइड करेंगे. तो नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में आप क्या कहेंगे कि एक ऐसा पॉइंट जहां पे नॉर्मलाइज इम्पिडेंस का रियल पार्ट किसके बराबर हो, 1 के बराबर हो, और इमेजिनरी पार्ट को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं विथ स्मॉल x. और अगर आप एडमिटेंस की बात करें, इसको जब आप नॉर्मलाइज करेंगे, तो नॉर्मलाइज एडमिटेंस, जिसके लिए मैं y डैश या y प्राइम का सिंबल यूज कर रहा हूँ, तो आप इसको नॉर्मलाइज करने के लिए Y0 पे डिवाइड करेंगे, तो रियल पार्ट 1 होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट को हम स्मॉल b से रिप्रेजेंट कर लेते हैं. सो मैंने डी को जो हमने फाइंड करना है, पहला पैरामीटर कि स्टब को लगाना किधर है, उसके लिए मैंने क्राइटेरिया क्या डेवलप कर लिया है, स्मिथ चार्ट. कि स्मिथ चार्ट पे हमने एक ऐसा पॉइंट चाहिए कि जिसमें ट्रांसमिशन लाइन की जो रियल पार्ट है वो 1 हो जाए, या इम्पिडेंस में भी 1 हो जाए, और अगर हम एडमिटेंस की बात करें तो रियल पार्ट 1 ही होना चाहिए. नाउ हमने एक सर्कल हम ड्रॉ करते हैं स्मिथ चार्ट के ऊपर, एंड यू पीपल माइट हैव रिमेम्बर्ड. हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और उस सर्कल को हम कहते हैं VSWR सर्कल. डू यू रिमेम्बर अबाउट दिस सर्कल, VSWR सर्कल? Yes, sir. जी.
ओके, ये सर्कल हम कैसे बनाते हैं जी? कैन यू कमेंट ऑन दैट? ये किस सर्कल की हम बात कर रहे हैं? इस वक्त जो आपके सामने ये स्मिथ चार्ट है, आप कैसे बनाएंगे VSWR सर्कल जी? सर जिसकी सेंटर सेंटर से ZL डैश डॉट तक। जी, वन बाय वन आप बता दें जी। यस, फ्रॉम सर सेंटर सेंटर टू से जेड डैश तक जो है उसकी रेडियस हो। रेडियस हो, यस दैट, यस। सो अदर स्टूडेंट्स वर आल्सो टेलिंग दिस थिंग कि आप अपना कंपास का एक पॉइंट यहाँ रखेंगे और उसको ओपन कर देंगे विद दिस मच रेडियस, और इतने रेडियस के साथ आप एक सर्कल बना लेंगे। सो लेट मी ट्राई दिस। आपके पास स्मिथ चार्ट है तो आपने अपने स्मिथ चार्ट के ऊपर मेक श्योर कि ये सर्कल आपने बनाना है, ताकि उसी के हिसाब से फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। सो लेट मी ड्रॉ अ सर्कल. So again, my circle may not be accurate, but make sure कि आपको आइडिया डेवलप करना है तो यू नो कि ये VSWR सर्कल आप कैसे बनाते हैं। So ये VSWR सर्कल आपने बनाना है। So this is your task to draw this circle. जब ये आप ड्रॉ कर लें तो लेट मी नो, ताकि मैं फिर आगे प्रोसीड करूं। हो गया सर। हो गया Okay. सर। Okay, let's wait for some more time ताकि बाकी स्टूडेंट भी इस सर्कल को ड्रॉ कर लें। हो गया सर। जी, बाकी स्टूडेंट्स ने भी कर लिया? यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Okay. Now what you need to do is कि क्योंकि हमने डिफाइन करना जो कि डिस्टेंस है, कि कितने डिस्टेंस पे हमने स्टब लगाना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट कि जो लोड हमारी पोजीशन है, लोड किस जगह पे है, लोड की पोजीशन ऑन स्मिथ चार्ट क्या है। तो क्योंकि हमने लोड को YL में ट्रांसफॉर्म कर दिया है, तो व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट कि यहाँ पे जो सर्कुलर स्केल होता है, क्योंकि हम डिफाइन करने के लिए लोड से सोर्स की तरफ जाएंगे, तो हमने कौन सा स्केल यूज करना है, जिसको आप लोग कहते हैं वेवलेंथ टुवर्ड्स जनरेटर स्केल। इस स्केल की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम जब लोड से इस पॉइंट की तरफ जाएंगे तो हम इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो इसके लिए हम ये वाला स्केल यूज करते हैं, वेवलेंथ टुवर्ड्स जनरेटर स्केल, जो आपके पास ये आपको नजर आ रहा है, इसमें चार्ट के ऊपर ये लिखा भी होता है वेवलेंथ टुवर्ड्स स्केल, और इसके साथ एरो जो है इस तरह है, जो कि मतलब कि क्लॉकवाइज हम मूव करेंगे। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं कि लोड की क्या पोजीशन है, वेवलेंथ टुवर्ड्स जनरेटर स्केल पे लोड किस जगह पे है। तो उसके लिए हम वही प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं कि हम ये जो लोड की आपने लाइन बनाई थी, इसको आप इस तरीके से एक्सटेंड कर लें और देखें कि वेवलेंथ टुवर्ड जनरेटर स्केल पे आपके पास किस जगह ये इसको कट करता है। सो आप लोगों ने मुझे ये रीडिंग बतानी है जी 0.065 कि ये जो वेवलेंथ टुवर्ड जनरेटर स्केल पे जहाँ पे ये इसको कट कर रहा है, ये रीडिंग क्या है जी? 0.064। 0.064 जी। बाकी लोग क्या कहते हैं जी? यस सर। 0.06। 0.0 6। 6 65 65 सर।
6.5 अगेन जो लोग 6.4 भी बता रहे हैं वो भी ठीक है, जिस तरह मैं पहले भी कह चुका हूँ कि एक्यूरेसी प्रिसीजन वाइज स्मिथ चार्ट में हमारे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल है कि वी आर नॉट दैट मच कंसर्न कि आप इसको 0.065 के तौर पर ले रहे हैं या 0.064 ले रहे हैं, दोनों आंसर सही है, ठीक है। सो 0.065 तो हमारा जो लोड है स्मिथ चार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से वेवलेंथ टुवर्ड जनरेटर स्केल पे इस वक्त हम इस जगह पे हैं, ठीक हो गया। अब हम जब मूव करेंगे, सो ये चीज भी मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब आप ट्रांसमिशन लाइन पे मूव कर रहे होते हैं, जिस तरह हम यहाँ से इस पॉइंट तक जाएंगे, तो जब आप इस ट्रांसमिशन लाइन पे मूव कर रहे हैं तो हर जगह पे इम्पिडेंस चेंज हो रहा है, हर जगह पे इम्पिडेंस चेंज हो रहा है। अब ये जो इम्पिडेंस में चेंज आ रहा है जब आप ZL से किसी भी जगह जा रहे हैं, तो ये इंफॉर्मेशन हमें इजीली मिल सकती है कौन से सर्कल से, जो सर्कल हमने ड्रॉ किया है VSWR सर्कल। तो जब मैं इस सर्किट में, जिस तरह भी आप मेरे इसको फॉलो करें कि जब मैं कह रहा हूँ कि ये इस जगह पे आप हैं और जब आप मूव कर रहे हैं ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर, ये मूवमेंट स्मिथ चार्ट के ऊपर कैसे होगी कि इस वक्त लोड यहाँ पे, दिस इज वाइल डैश, हमारे जो लोड की पोजीशन है वो ये है। तो जब मैं मूव करूंगा तो मैं टुवर्ड्स जनरेटर मूव कर रहा हूँ, तो मैं इस सर्कल के ऊपर जब मैं मूव कर रहा हूँ ना, तो ये जो मेरी मूवमेंट है इस वक्त VSWR सर्कल के ऊपर, ये इस मूवमेंट को कॉरेस्पॉन्ड कर रही है जो ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर सर्किट के हिसाब से, ठीक हो गया। तो जब मैं इस पॉइंट से इधर जा रहा हूँ या मैं इस पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर जब मूव कर रहा हूँ, इट इज वन एंड द सेम थिंग, ठीक हो गया। अब मेरा गोल क्या है, मैंने एक ऐसे पॉइंट तक पहुंचना है जहां पे इम्पिडेंस या एडमिटेंस की सिचुएशन क्या होनी चाहिए कि इसका रियल पार्ट 1 होना चाहिए। वह ऑफ कोर्स इस केस में आप इसको रेजिस्टिव सर्कल कहेंगे और इस केस में इसको कंडक्टेंस सर्कल कहेंगे। तो स्मिथ चार्ट के ऊपर ऑलरेडी हमें पता है कि जब मैं इसके ऊपर मूव करके, अगेन मैं इसको कोई और कलर यूज कर लेता हूँ सो दैट व्हाट आई एम सेइंग इज कि जब आप इस पॉइंट से लोड पोजीशन से इस VSWR सर्कल के ऊपर मूव कर रहे हैं, तो यू कैन इजिली आइडेंटिफाई कि जब आप इस जगह पहुंचेंगे, कहाँ पहुंचेंगे, जहां पे आप इस सर्कल को क्रॉस करेंगे, दिस वन। कौन सा सर्कल है, अगर आप देखें ये वाला सर्कल, जो कि ये वाला 1 वाला सर्कल यही है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आके आप रुक जाएंगे। यहाँ पे मैं क्यों रुक गया जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट पे इम्पिडेंस कितनी है, इसको मैं Z सर ये dash 1 प्लस 1 sir. 1 प्लस JX रियल पार्ट कितना है यहाँ इस पॉइंट पे, 1 रियल सर। पार्ट 1 है, ठीक है। यस सर। दैट वाज माय गोल, अगेन मैं इसको Z कह रहा हूँ, मेक श्योर कि मैं ये सम टाइम आई मेक मिस्टेक, क्योंकि हम शंट की बात कर रहे हैं, इसको आप एडमिटेंस के तौर पर ट्रीट करेंगे। तो पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो पॉइंट है इसका रियल पार्ट 1 है। नाउ यू आल्सो कैन टेल मी कि इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है, वो भी आप बता सकते हैं, तो वो भी आप मुझे बता दो। प्लस JX प्लस J कितना है जी, अब इसको x तो नहीं कहेंगे, अब तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि इस वक्त हम इसको x तो नहीं कहेंगे, मैं तो एक्सप्लेनेशन के लिए x कह रहा था। अब मुझे आप बता सकते हैं 1.5 Sir, 1.47. 1.48 1.48. 1.48 जी। बाकी मोस्ट ऑफ द पीपल जो मुझे आवाज आ रही है वो सब यही कह रहे हैं 1.4। 1.5 आप 5 भी ठीक है अगेन, लेकिन अगर मैं ज्यादा एक्यूरेट जाऊं तो ये 1.48 या 1.47 जो है ज्यादा एक्यूरेट है, लेकिन अगेन 1.5 भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या इवन प्रैक्टिकल सर्किट डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। सो नाउ यू नो कि ड्यूरिंग मूवमेंट मैं जब ये लोड से मूव कर रहा था VSWR सर्कल के ऊपर, किस डायरेक्शन में, ऑफ कोर्स वेवलेंथ टुवर्ड जनरेटर स्केल हम यूज कर रहे थे, क्लॉकवाइज मूव कर रहे थे। और यहाँ पे आके मैं क्यों रुक गया, क्योंकि मुझे वो पॉइंट मिल गया जहाँ पे मुझे पहुंचना था। कौन से पॉइंट पे पहुंचना था, हमें ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर एक ऐसे पॉइंट की तलाश थी जहां जिसका रियल पार्ट 1 हो जाए।
और ये वो पॉइंट हमें मिल गया रियल पार्ट 1। और इफ यू रिमेंबर मैंने क्या कहा था कि इररिस्पेक्टिव के इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो इररिस्पेक्टिव के इमेजिनरी पार्ट क्या है वो इस वक्त मेरा उसका कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन मैंने एटलीस्ट इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक एग्जांपल में मुझे पता चल गया है कि इसकी वैल्यू 1.48। ठीक हो गया। नाउ ये जो मैंने मूवमेंट की है इस जगह से इतनी की है, ऑल आई नीड टू फाइंड आउट कि मैंने कितनी मूवमेंट की है और इससे मुझे डीप पता चल जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, जिस तरह आपने पहले किया था कि आपने इस पॉइंट जो जिस तक इस वक्त हम पहुंच गए हैं, आपने फाइंड करना है कि ये पॉइंट वेवलेंथ वर्ड जनरेटर स्केल पे कहाँ है। तो अगेन आपने सेंटर से इस पॉइंट को मिलाना है और इसको ऑल द वे वेवलेंथ टुवर्ड जनरेटर स्केल को कट करना है। तो अब आपने मुझे ये रीडिंग बतानी है कि ये क्या रीडिंग है जी, इस पॉइंट की रीडिंग वेवलेंथ टुवर्ड जनरेटर स्केल पे क्या है, ये आप मुझे बता देंगे तो देन वी विल बी एबल टू फाइंड दी 0.176. जी 0.176. जी। 2 स्टूडेंट्स जो मुझे आंसर बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि 0.176। बाकी स्टूडेंट्स जरा 0.175. 175 ये भी ठीक है जी, 177. ये भी ठीक है। Okay, so it means most of the students they are around about this value. ठीक है। Now the question is मैंने start लिया किस जगह से, मैंने लोड से स्टार्ट लिया और लोड इस जगह पे था और मैं जब जहाँ जिस जगह में पहुंच गया तो इतना हो गया। तो ये इफेक्टिवली ये जो आपने मूवमेंट की है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या चीज होगी, ये डी होगा। D, sir. तो D, sir. अगर तो डी आप कैसे फाइंड करेंगे, डी की वैल्यू क्या होगी? 0.176 0.176 minus 0.065. यस, ये आपके पास डी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू है तकरीबन 0.110 एंड वी ऑल नो कि स्मिथ चार्ट के ऊपर जो ये स्केल है वेवलेंथ टुवर्ड जनरेटर स्केल है या वेवलेंथ टुवर्ड स्केल है, ये जो वैल्यूज है ये इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ है। तो ये जो डी इक्वल टू 0.110 आया, ये ना मिलीमीटर है ना सेंटीमीटर है ना मिलीमीटर है ना किलोमीटर है, बल्कि ये वेवलेंथ है। तो ये वेवलेंथ के फॉर्म में इसकी वैल्यू इतनी होनी चाहिए। सो नाउ जो हमने स्टब लगाना होगा इस पर्टिकुलर केस में, हमें लोड से 0.110 लैम्डा डिस्टेंस पे इसको लगाना होगा। ठीक है, ऑफ कोर्स लैम्डा में पता होगा कि ये सर्किट है, ये किस फ्रीक्वेंसी का सर्किट है, तो फ्रीक्वेंसी से हम वेवलेंथ निकाल लेंगे और फिर हमें पता चल जाएगा कि इफेक्टिवली वेवलेंथ की वैल्यू, अगर लेट्स से एग्जांपल ले रहा हूँ कि लेट्स से अगर हमारे पास लैम्डा की वैल्यू 1 मीटर के बराबर है, इसका मतलब है कि डी आपके पास 0.110 मीटर आ जाएगा। ठीक है, सो इट ऑल डिपेंड्स कि वेवलेंथ की वैल्यू क्या है। सो क्योंकि हमने डी को इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ एक्सप्रेस किया है तो इट डजंट मैटर कि वेवलेंथ चाहे जो कुछ भी हो, इस डिस्टेंस के ऊपर हमें इसको लगना। नाउ इफ यू गो बैक जो हमने इनिशियल डिस्कशन की थी कि डी आपने फाइंड कर लिया है और अब हमने क्या करना है कि इस पोजीशन पे हमने क्या लगाना है, स्टब लगाना है। और क्योंकि शंट में लगाना है तो हमने क्या करना है, इस जगह पे एक स्टब लगा देंगे। और हम स्टब किस लिए लगा रहे हैं जी, कैन एनीवन कमेंट ऑन दैट? स्टब का मकसद क्या होगा आपके ख्याल में? Matching के नहीं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जिस Reactive जगह, part cancel कर. यस रिएक्टिव पार्ट, हमने जिस जगह पे स्टब को लगाया है उस जगह पे हमारे पास एडमिटेंस कितनी है, 1 + j 1.48 है। तो इस क्योंकि एडमिटेंस के हिसाब से हम देख रहे हैं तो जो Yes. प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं उस केस में हमारे पास सिचुएशन है 1.48। तो स्टब हम किस लिए लगाएंगे कि हमने क्या चीज कैंसिल करनी है, Reactive parts. इसको कैंसिल आउट करना है। इसका मतलब है कि जो स्टब हम लगाएंगे उसने कितनी वो प्रोवाइड करनी है ससेप्टेंस, क्योंकि अब मेक श्योर कि आप करेक्ट टर्मिनोलॉजी यूज करें क्योंकि मैं एडमिटेंस की बात कर रहा हूँ। तो ये जो इमेजिनरी पार्ट है ये रिएक्टेंस नहीं है बल्कि क्या है, ससेप्टेंस है। तो स्टब जो हम लगाएंगे उसने कितनी ससेप्टेंस प्रोवाइड करनी होगी ताकि ये कैंसिल हो जाए, Minus माइनस, यस यस। सो लेट मी राइट दिस। सो स्टब has
provide माइनस J1.48 और इसके साथ लिख देंगे कि ये सब्सटेंस है इसकी, क्योंकि हम स्टब को पैरेलल में लगाएंगे। नाउ ऑल वी नीड टू डू इज, हमें इतना पता चल गया कि जो स्टब हमें चाहिए उसने इतनी सब्सटेंस प्रोवाइड करनी। इसका मतलब है कि अब हमें इस इंफॉर्मेशन से हमारे लिए आसान हो जाएगा कि हम ये फाइंड करें कि ये जो हमने स्टब लगाया है इसकी लेंथ हमें कितनी रखनी पड़ेगी। स्टब की लेंथ अब हम फाइंड करेंगे, ठीक है। I think we need to move to the next session क्योंकि दरमियान में ये हो जाएगा। So let's continue this example and find out कि जो अब तक हम जो प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं जिसमें हमने स्टब को इतने डिस्टेंस के ऊपर लगाना है, अब हमने ये फाइंड करना है कि स्टब की लेंथ हमें कितनी रखनी पड़ेगी जिससे हमारा सर्किट मैच हो जाएगा। और अब तक की जो हमारी सोल्यूशन है उसके हिसाब से हमें ये इंफॉर्मेशन मिल गई है कि जो स्टब हमने यूज करना है उसको माइनस J1.48 सब्सटेंस प्रोवाइड करनी है। ये इंफॉर्मेशन हम यूज करेंगे टू फाइंड L in the next session.